Diversion head works. I explained the need of irrigation and the role of civil engineering students. You won't find it in like irrigation book directly. If you go chapter by chapter in Garg's or Punamia's book, then you will be lost like in first, second, or third chapter that irrigation is not that civil engineering's jobs because they have to arrange their chapters in certain way. So first they explain you the water requirement of crops and they then come on the water and then come on to the hydraulic structure, isn't it? So what happens that when you really studying the first 3 4 chapters of any book, then you start feeling like that irrigation is not civil engineering subject, but it is not. It is not like bridge engineering. When you study river flows, the impact of river flow on piers and abutments and deck and superstructure, like those things. When you study railway engineering, then you think that you are going to study the rail. Rail is not our part. The rail is load, providing structure, moving structure. So what we are basically doing there is that we are constructing the formation on which the track is laid. So that is what is the civil engineering structure, and trust me, it is very much huge if you can understand how to really create the formation, the formation on which the track is laid. So that is what we need to understand in irrigation engineering. You come after Sada Bar Pachi. Okay, so what is this irrigation engineering that I was explaining you? Uh, I was explaining you in terms that we build here structure and we are basically civil engineers. We deal in concrete, we deal in civil engineering material, that laying of bricks, laying of concrete, laying of say reinforcement in concrete, and then building structure so that water can be conveyed, so that water can be conveyed, and that conveyed water will enable farmers to grow the crops. So crop growing is not our territory or our domain to look into, but we are looking into that because that defines the total amount of water required, and total water required give us the height of the dam. Total water requirement give us the height of the dam, height of the weir, height of the barrage to be constructed, and size of the canal to be constructed. That is what we have seen last time. So this time I just have a 2 3 slides brief of that, and then I would start with the new concept of आवाज नहीं आ रही है. I'm just sharing this slides PPT with you. You just hold for a second. Now PTs are visible. Are your Yes, sir. screen is filled with my slide? Yes, sir. Okay, fine. This is the diversion head works, and last time we have also seen this one thing about the food security, and I couldn't share this slide. There was PDF in that. So this was a comparison that where the India stand against the international like China and US, what they have in their kitty. 650 grams per day per capita is what we grow here in India with our infrastructure. Our infrastructure in irrigation sector, civil engineering infrastructure in, and what about China? It's 980 grams per day per capita. That is production, and US, you see, it is 4 5 times than Indian production.
But with this 650, we are not deficient. We are food sufficient country at present. I also explained this and I supplied the PDF last time. You might have gone through. I asked that I'll share a quiz on this. So that is what again I'm showing this just comparison of rain-fed area and irrigated area. Rain-fed area last time I explained again that rain-fed area is area in which there is no irrigation, and this the crop growing is done only when the monsoon season is there, and in irrigated area the water, additional waters is supplied apart from the monsoon rainfall and during the other months when there is no monsoon to grow the crops, and per hectare production we have seen in that. Now coming to this is important slide. You should digest the data here. What is mentioned over here, that we have area of 3.3 million square kilometer, or you could say 330 million hectare in India. Onto the left side, I show you with this arrow, this is 330 million hectare of land, total land of India. If you think about the geographical expanse of India, if you think about, then it is 330 million hectare. And ultimate irrigation potential of India is about 140 million hectare. 140 million hectare. Whole of the land cannot be really irrigated. The maximum irrigation potential means that maximum land which could be irrigated, where we could take water and irrigate, we could produce the crop onto that land. So out of this 330, how much? 140 only. That is almost, you could say, less than the half of the land is not suitable for irrigation purpose, or for maybe that land is not suitable for agricultural. Certain lands are like urban land, urban settlements, where there is like the Himalaya area where irrigation or the agriculture is not possible. Then you could see the water bodies where you could we can't create any agricultural activities onto that. So 140 million hectare is the ultimate potential that can be done, and we could not reach up to that. How much is achieved irrigation potential in India is 85 million hectare of land is presently being irrigated. How much is this? This is 61% of the total land which could be irrigated. मैं इस पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं आपको बताऊं कि 61% पे ही हमारा सिविल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जहां पे डैम्स बने हैं या पियर्स बने हैं जो पानी को डाइवर्ट करके केनाल या पाइपलाइन के थ्रू लेके जाते हैं और वहां पे पानी को अवेलेबल करवा पा रहे हैं. तो सिंस इंडिपेंडेंस और बिफोर इवन इंडिपेंडेंस, इफ यू कंसिडर द टोटल स्पान ऑफ इरिगेशन ईरा, तो उसमें 60% लैंड जो कि हम 140 तक पहुंच सकते हैं, उसमें से केवल 85 मिलियन हेक्टेयर तक इंडिया में पहुंचे हैं. तो ये 61% जो हमारा है उसको हम 100% तक लेके जाएंगे तो पर कैपिटा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ेगा. उसको हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम रोड बनाते हैं तो कम्यूटर इजीली कुड मूव फ्रॉम अहमदाबाद टू बड़ौदा बाय यूजिंग एक्सप्रेस हाईवे. Are you getting? Likewise here, this water infrastructure we create, then what is the ultimate that farmers could grow? That is what the intention is. So here 85 million hectare land ही केवल अभी तक irrigated है. बाकी का जो 40% एरिया है इंडिया का अभी भी इरिगेशन नहीं हो पाया है. गुजरात में भी आपको देखोगे जो सौराष्ट्र के बहुत सारे एरिया है, तालुका जो डिस्ट्रिक्ट पूरे मिलेंगे जहां पे पानी नहरों से और पाइपलाइनों से पीने का नहीं पहुंच रहा अभी तक. तो सिंचाई का पानी कहां से पहुंचेगा? तो पाक वहां पे एक ही होती है, केवल मानसून में लेते हैं और दूसरी कोई पाक नहीं होती. तो ये इसका 40% जो एरिया हर स्टेट में आपको मिलेगा. सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरियाज कौन से हैं? आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहां पे ज्यादा नदियां हैं. हम जो एरिया सौराष्ट्र या भुज, ये कच्छ, विदर्भ,
या जैसलमेर जो थार डेजर्ट है, वहां पे जहाँ नदियां नहीं है, वहां पानी दूर से लाना पड़ता है, तो वहां पे इरिगेशन हमारा स्ट्रक्चर का पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार का जो पैसा है वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो वो सरकारों के पास यदि पैसा नहीं है तो वो वर्ल्ड बैंक से लेके आती है या आईएमएफ से लेके आती है, वहां से पैसा मांगती है, यहाँ इन्वेस्ट करती है और फिर प्रोजेक्ट बनाती है। तो ये प्रोजेक्ट अभी तक बने ही नहीं है, आप मानो अभी हम मिड पॉइंट पे ही है। ड्रीम्स आपको लगेगा कि इतने सालों से बन रहे हैं, बन के खत्म हो गए होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। बहुत सारी अभी भी रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि अभी भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाना है। तो अब मैं गुजरात लेवल पे आ जाता हूँ, इंडिया को छोड़ के। हमारे पास गुजरात में जो टोटल हमारा जो एरिया है वो 6% ऑफ द टोटल इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया का 6% है। तो उसमें कितना है, 19.6 मिलियन हेक्टर है। जो 330 मिलियन हेक्टर लैंड है इंडिया का, उसका 6% गुजरात का है। और उसमें से यदि हम इरिगेशन देखें तो 39.4 लाख हेक्टर्स, यहाँ पे मिलियन का एक जीरो और कम हो गया है। ये मिलियन लगाऊंगा तो मैं क्या होगा, 5 जीरो की जगह 6 जीरो होगा, तो 3.9 हो जाएगा, मिलियन हेक्टर हो जाएगा। आप देख रहे हैं 19.6 मिलियन हेक्टर लैंड में से पोटेंशियल, जो मैक्सिमम पोटेंशियल, अल्टीमेट पोटेंशियल है, वो 4 मिलियन हेक्टर लैंड है। कितना, 20% ही। बाकी एरिया हमारे पास है जो हम कर ही नहीं सकते। अभी उसमें से अचीव्ड जो इरिगेशन है वो 21.43 लाख हेक्टर्स है। अगेन आप इसको मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2.1 मिलियन हेक्टर आएगा, जो केवल अल्टीमेट पोटेंशियल का 55% है। मतलब गुजरात में नेशनल जो एवरेज 61% अचीव्ड इरिगेशन का पोटेंशियल है, जिसमें कैनल्स बन गई है या पाइपलाइन बन गई है या डैम्स बन गए हैं या स्मॉल डैम्स बन गए हैं या अर्दन डैम्स बन गए हैं, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे बन गया है वो 61% अचीव हुआ है। और जो गुजरात में है वो यहाँ पे आप देखिए 55% है। मतलब गुजरात में इरिगेशन का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है जितना कुछ स्टेट्स में है। ये फिगर नीचा होने का कारण एक दूसरा भी है कि कुछ स्टेट्स में 80% से ज्यादा उन्होंने अचीव किए हैं, जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसका 80% से ज्यादा अचीव कर लिया है। जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पे इनका हायर लेवल का अचीवमेंट आ गया इरिगेशन का। ये एक बेसिक रीजन है कि वहां पे ज्यादा, हमसे ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। और यहाँ पे गुजरात में अभी भी हमें 45% इरिगेशन पोटेंशियल अचीव करना है। ये राइट साइड में जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपका यूनिट कन्वर्जन लिखा हुआ है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा जब मैं बोल रहा था तब, जानकारी के लिए लिखा हुआ था। अभी आपको ये जिसका भी माइक्रोफोन खुला है 28 या 39, मुझे ये बताओ, ये आपको स्केच दिख रहा है आपके मोबाइल में, या इंडिया का एक मैप है जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल लैंड यूज दिखाया हुआ है? तो आप माइक्रोफोन अपना खोल के मुझे बताएं। यस सर, दिख रहा है। दिखाई दे रहा दिखा रहा है, कलर्स दिख रहे हैं? है। यस सर। ओके, कलर्स दिख रहे हैं। और ये डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, किसी दूसरा सुपर इम्पोज्ड पिक्चर तो नहीं आ रही इसके ऊपर? नहीं सर। ओके, मैप पूरा दिख रहा है ना? ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। तो इसमें आप एग्रीकल्चरल लैंड यूज इंडिया का दिखाया हुआ है। ये मैं 3-4 मैप आपको और दिखाऊंगा अभी इसके बाद। इसको मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए करना, दिखाना चाह रहा था, आपको समझ में आए कि यहाँ पे कौन कौन सी क्रेप कौन सी साइड में हो रही है। हमें केवल गुजरात का व्यू लेने से मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका 4 साल खत्म होने के बाद जरूरी नहीं है कि आप यही जॉब कर रहे हो सकता है बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, आप दिल्ली कहीं पे भी हो सकते हो, और कहीं के भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में हो सकते हैं। जो अहमदाबाद में या गुजरात में कंसल्टेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो केवल गुजरात के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते हैं, वो थ्रू आउट इंडिया, इवन बाहर के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं उनके पास। तो हमें ये बाहर की ज्योग्राफी और बाहर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी समझनी चाहिए। 7th और 8th सेमेस्टर में तो एटलीस्ट यू शुड थ्रो, जो आपका दिमाग है वहां तक आपको खींच के लेके जाना चाहिए कि आउट ऑफ गुजरात एंड आउट ऑफ इंडिया कैसे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कैसे डिसाइड होते हैं।
तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको क्रॉप दिखाई हुई है, जिसमें से डबल ट्रिपल क्रॉपिंग एरिया, जिसमें कि जो पिंक शेड है वो दिखा रहा है कि वहां पे एक साल में 2-3 क्रॉपिंग हो रहा है। प्लांटेशन है जो लाइट पिंक है। खरीफ मतलब जो केवल मॉनसून सीजन आप मान लो मिड जून से लेके अक्टूबर या सितंबर तक। फिर रबी जो हमारे सर्दियों में जो क्रॉप लगाते हैं रबी क्रॉप, तो वो है जो मोस्टली नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में या फरवरी तक भी खिंच जाती है, मिड फरवरी तक खिंच जाती है, 3-3.5 महीने लेती है। फिर जैद आती है, जैसे वाटरमेलन आता है आपका मार्च अप्रैल और मई, 3 महीने का आता है ना, तो ये इन बिटवीन खरीफ रबी एंड खरीफ का 3 महीने में कुछ एक क्रॉप्स आती हैं, जैसे पैडी है या राइस है, वो कभी भी लगा लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री का जो पार्ट्स है ना, जो इस मैप पे आप देख रहे हो, तो इसमें कभी भी डिफरेंट डिफरेंट सीजन में सेम क्रॉप लगती है। राइस हो सकता है यहाँ पे रबी में लग रहा है, कुछ एक कॉमन क्रॉप्स हैं। अदरवाइज जैसे वीट है तो वो केवल रबी में ही होता है, और कॉटन है तो वो केवल उसी सीजन में विंटर सीजन में ही होता है। बट कुछ क्रॉप्स हैं वो दोनों तीनों सीजन में लेते हैं फार्मर्स, तो ये फायदा रहता है। तो क्रॉप्स आर बिटवीन लाइक मार्च अप्रैल एंड मे, एंड फेलो लैंड आर लाइक दिस ग्रे एरिया। जो ग्रे एरिया छोड़ा हुआ है बीच बीच में, ये एरिया वो है जहाँ पे किसान छोड़ देते हैं, फार्मर्स एक साल तक लैंड छोड़ देते हैं उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। दे डू नॉट ग्रो एनीथिंग ड्यूरिंग 1 year or more than 1 year sometimes, to increase the fertility of land. So this is one, I show you again more things about it. I'm just adjusting my screen. You hold on. This is it clear? सर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा यस ये हेजी है, हेजी है। और ये दिखाया हुआ है इसमें ग्रो कैसे किया हुआ है, जो हमने पिछले मैप में देखा था क्रॉप्स को, वो यहाँ पे डिटेल में दिखाई हुई है। खरीफ, रबी, डबल ट्रिपल क्रॉप, जैद एंड फेलोलैंड, इंडिया में कौन कौन से पोर्शन में जो इसका शेड बढ़ रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसको नीचे यहाँ पे भी ये दिखाया हुआ है। तो आई शो यू वन मोर नेक्स्ट। So I think it is more clearer picture. Is it? यस सर। Okay. Uh, Irrigated area is this here, Kharif, Rabi and Jaid. There are 3 seasons mentioned here, irrigated, and this is total cropping. This cropping means even irrigated and non-irrigated, everywhere, every land of India. And this is how the this is about rice in irrigated to cropping. This is what you call ratio. So if ratio is 0 and it is increasing from 0 to 0.8, so this is how India look for the irrigated land to the cropping land. And this is for one crop. This is for one crop rice. And second, this is wheat. You could see that खरीफ सीजन में wheat नहीं हो रहा है, केवल रबी में ही है। और वहां पे इंटेंसिटी जो अवेलेबल है यहाँ पे इरिगेटेड की, केवल इस एरिया में है। या तो हम नॉर्दर्न पार्ट में देख सकते हैं कि ज्यादा इरिगेशन है, या फिर ये सेंट्रल का थोड़ा पार्ट है। नीचे जाते हैं तो ये सारी क्रॉप जो तो यहाँ देख रहे हो ना, ये सारी की सारी मॉनसून क्रॉप्स हैं, केवल खरीफ क्रॉप्स लेते हैं यहाँ पे। ये गुजरात का हिस्सा देखिए आप, ज्यादा नहीं है यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो ये जो परसेंटेज रेशियो है जो इरिगेशन स्ट्रक्चर्स का, आप मान सकते हो इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन डिड्यूस दैट वेयर एंड हाउ मच द स्ट्रक्चर्स आर रियली। दिस इज अबाउट maize. It's a purely a creep crop, somewhat like this. Irrigation is somewhat like this, then total cropping, and this is ratio. And Rabi there is hardly anything, and in this season also March, April, May, this is grown a little bit in these areas. ये इस एरिया में थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं ये लोग। Okay, this was like understanding. I'm just again okay.
Okay. Civil infrastructure. Now, we are starting with your viewpoint and your interest area of our interest, that where we really matters into irrigation engineering. So I write this irrigation civil infrastructure, and what we are doing two things here, that for diversion of water and for conveyance of the water. So irrigation, how to increase, if you could do these two things, that you could divert the water and you carry this water to farmlands, to farmers, then there would be like utilization of our land. जो धरती सोना उगलती है, कहते थे ना पुराने जमाने में हमारे फादर्स फोर फादर्स, कि हमारी धरती सोना उगलती है। सोना उगलती है मतलब पहले कहीं इरिगेशन था ही नहीं, तो अभी इरिगेशन होने लगा है। लेकिन इसराइल जैसी कंट्री ने 3-4 क्रॉप लेती है और एक एक इंच जो उसकी लैंड का है वो यूज करते हैं। आप इरिगेट, जो मैंने अभी आपको मानचित्र दिखाए थे इंडिया के मेज और राइस और व्हीट के, वही मानचित्र आप यदि देखोगे इजराइल के, तो वहां पे आप क्या मिलेगा देखने को, कि ये सारी की सारी लैंड है वो पूरा का पूरा डार्क नजर आएगा आपको। इरिगेटेड टू टोटल क्रॉपिंग में मतलब जो रेशियो था वो 1 ही रहेगा। एवरी पार्ट ऑफ दैट लैंड इज बीइंग इरिगेटेड थ्रू ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन हम कौन सा इरिगेशन करते हैं, हम कैनाल ले जाके छोड़ देते हैं वहां पे, और फ्लड इरिगेशन करते हैं। मोस्टली जितना पानी चाहिए उससे डबल पानी किसान डाल देते हैं, जो पड़ा पड़ा उड़ जाता है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं टेक्निकली, वो खत्म हो जाती है। हम डाइवर्ट करते हैं, ले जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो जो होना चाहिए कि इतने से पानी में ये फसल हो सकती है, the farmers grow that crop within say a quantity of water they are using, say 2A, double the water required for a crop they are using that much water। तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो जो हमारा सिस्टम है वो 100% अचीवमेंट पे आ ही नहीं रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर 100% जो पोटेंशियल है हमारा, वहां तक हम अचीव करने पे पहुंच ही नहीं रहे। समवेयर दिस इज ऑल्सो ए कंसर्न ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो फार्मर्स हैं वो भी इस रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसको एडॉप्ट करें, उनको फॉलो करें। जैसे मास्क लगा के हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें गमछा वमछा लगा के बाहर निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो ये तो हम फॉलो कर रहे हैं डर के मारे, लेकिन जब पानी का लेना है तो वो जितना खोलना है उससे डबल खोलेंगे। आधा घंटा तक पानी खेतों में लेना है तो 2 घंटे तक लेंगे, या पानी को ऐसे ही डाल देंगे इन with mentality that more water will grow more crop, but it is not। optimum water would grow more crop। ज्यादा पानी फसलों को भी खराब होता है, ये मेंटालिटी समझ में भी तो आनी चाहिए। तो ये जो हमारी समझ है, तो ये समझ उन तक पहुंचनी चाहिए। तो ये हुआ नहीं है अभी तक। तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कुछ फुल कैटर करने में जो लैंड एरिया है उसमें अभी तक सक्षम नहीं हुआ है। तो आपको मैं ये चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम 2 चीजें बनाते हैं मोस्टली। एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक कन्वेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाइवर्जन स्ट्रक्चर में हम बियर्स बनाते हैं, बेरास बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, इनके साथ कुछ पेरिफेरल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी बनाते हैं। अभी मैं केवल मेजर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ताकि हम समझ सकें कि क्या क्या यूज होता है इरिगेशन में, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या यूज होता है। फिर हम कन्वेंस के लिए आ जाएं, तो कन्वेंस में क्या आता है, केनाल्स आती है। केनाल्स में वहां पे कुछ हेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेड रेगुलेटर है और ड्रेनेज वर्क है, ये बहुत हेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर की कॉस्ट 100 करोड़ रुपए होती है या 200 करोड़ रुपए होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो छोटे स्ट्रक्चर है मैं उनको मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ। फिर हमारे कन्वेंस के लिए क्या है, पाइपलाइंस भी आजकल यूज करते हैं डाइवर्ट करने के लिए। पूरी पूरी केनाल जो है पाइप फ्लो के थ्रू जाती है, केनाल और पाइप फ्लो के जाती। फिर फील्ड चैनल्स, जो मोस्टली इंडिया में फार्मर्स पे ही ये लोड रहता है कि दे शुड क्रिएट देयर ओन फील्ड चैनल्स। फील्ड चैनल्स के थ्रू ये जी वाटरिंग करते हैं वो क्रॉप की, तो क्या होता है कि क्वांटिटी कंट्रोल्ड वे में नहीं होती है। जब हम इरिगेशन और स्प्रिंकलर या ऐसे मेथड से करते हैं
तो वो सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल्ड वे में वाटर को डिस्चार्ज करती है। जहां पे 10 ड्रॉप्स पानी चाहिए वहां पे फील्ड चैनल्स के थ्रू हम डायरेक्ट पानी अप्लाई करें। फ्लडिंग मेथड होता है जिसमें पानी को केवल छोड़ दिया है, तो क्या होता है कि वहां पे पानी छोड़ दिया तो ज्यादा लग गया, तो ये फील्ड चैनल्स बनाने की जो पद्धति है ये पुरानी हो चुकी है। हालांकि अभी पानी को लेके जाते हैं और वहां से इसको प्रेशराइज्ड फ्लो में, ड्रिप इरिगेशन में या स्प्रिंकलर इरिगेशन में कन्वर्ट करके हम यदि न्यूअर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो पानी का रिक्वायरमेंट कम होगा, हमारे स्ट्रक्चर कम बनेंगे। मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि हम जब इंजीनियर बन जाएंगे आप लोग, तब क्या होगा, हम पानी की क्वांटिटी बैठ के काउंट करेंगे। क्वांटिटी काउंट करते वक्त हम 10 गुना क्वांटिटी काउंट, पानी की क्वांटिटी काउंट कर लेते हैं कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो हमें उतने स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो ये हमसे गलती नहीं होनी चाहिए कि कितना पानी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पानी का रिक्वायरमेंट है, पानी का जो स्टोरेज है, पानी का जो कन्वेंस है, वो डिपेंड करता है एंड यूजर्स पे, फार्मर्स पे, ये यहाँ पे जो एंड यूजर्स है वहां पे। तो ये चीज बहुत एक बड़ी चीज है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में आनी चाहिए। अभी मैं आपको वियर एंड बेराजेस में डिफरेंस तो नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं पूछूंगा तो नॉइज आएगी, तो मैं ही बता देता हूँ डायरेक्ट आपको वियर और बेराज में डिफरेंस क्या है। जो वासना बेराज है, अहमदाबाद में जो रहने वाले आप लोग हो तो अम्बेडकर ब्रिज के ऊपर से गुजरे होंगे तो साफ दिखता है वहां पे उधर की तरफ के पानी। जहाँ ओके, आपने रिवर फ्रंट तो सभी ने देखा होगा, अभी 4 वर्ष से आप यहाँ विश्वकर्मा में पढ़ रहे हो, तो जहां पे खत्म होता है हमारा रिवर फ्रंट, तो कहाँ कहाँ जाके खत्म होता है, वासना बेराज पे, वासना बेराज पे जाके रिवर फ्रंट खत्म होता है। लेकिन वासना बेराज को रिवर फ्रंट में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उस बेराज का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि ये वासना बेराज तो 30-40 सालों से है। वहां से एक नहर निकलती है, कैनाल निकलती है राइट साइड में, और साणंद जो अपना तालुका है उस तरफ जाती है। साणंद तालुका का काफी एरिया है, वहां पे इरिगेशन करती है, पानी सप्लाई करती है, और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को भी देती है। वहां पे मोस्टली एग्रीकल्चरल केनाल है, लेकिन छोटी सी केनाल है। उसका डिस्चार्ज कितना है मैं आगे की स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में देखूंगा, आपको बताऊंगा कि फतेहवाड़ी जो केनाल है उसका कितना डिस्चार्ज है। लेकिन वो बैराज है, तो उसका जो जो रिवर फ्रंट बना हुआ है वहां पे जो बैराज है, बैराज का काम क्या है, बैराज का काम है पानी को रोक लेना। पानी को तो वियर भी रोकता है, थोड़ा सा कूलिंग होता है, तो मैं वियर और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डिटेल में तो हम लेंगे ही, लेकिन पानी को रोक लेता है और हेडिंग करता है। तो जो बैराज है उसके ऊपर गेट लगे हुए होता है, वियर पे गेट नहीं लगा होता। पानी यहाँ इकट्ठा हुआ इस साइड और यहाँ से चला जाएगा ऊपर से, जब ज्यादा पानी इधर आ जाएगा तो, जैसे रिवर फ्रंट में पानी ज्यादा आ गया मानसून सीजन में और यहाँ पे बैराज की जगह वियर होता तो चला जाता। लेकिन अभी क्या होता है कि वो बैराज में गेट डाउन कर देते हैं, लोअर कर देते हैं। ड्यू टू लोअरिंग डाउन ऑफ गेट्स what is being affected, then more water can be hold on to can be kept onto this reservoir, और वो जो ज्यादा पानी यहाँ पे है उसको नहर के अंदर या कैनाल के अंदर हम डाइवर्ट कर सकते हैं या पानी को रख सकते हैं, फ्लड को बचाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो वियर और बैराज में यही फर्क है कि वियर इज अनगेटेड एंड बैराजेस आर गेटेड। बैराज का जो है वो कॉस्टिंग ज्यादा आता है, खर्चा जो है ना वो ज्यादा आता है। एक वियर का मान लो 100 करोड़ रुपए है या 200 करोड़ रुपए है, तो बैराज, भड़भूत बैराज जो है हमारा सरदार सरोवर डैम है, उसके बाद एक स्टेच्यू है सरदार का, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, आप लोग में से बहुत सारे लोग जा भी चुके होंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ पानी है, आपने देखा होगा चारों तरफ पानी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ पानी। पानी कहाँ से आया, पानी तो डैम में रोक लिया था, और जो थोड़ा बहुत आता है वो बह जाना चाहिए। तो उसको पानी करने के लिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे, भरूच की तरफ, तो आपको क्या दिखेगा कि एक रिवर बना हुआ है करीब करीब 1.5 किलोमीटर, जो सरदार सरोवर डैम है उससे स्टेच्यू, और स्टेच्यू से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नीचे की तरफ भरूच की तरफ एक वियर बना हुआ है, छोटा सा वियर। अब वियर बना दिया तो पानी उसमें इकट्ठा होकर रहता है बिटवीन सरदार सरोवर एंड दिस वियर। अब जो एक्सेस पानी है वो निकल के चला जाता है, एक्सेस पानी है जो इस वियर के ऊपर से भी चला जाता है, और कहाँ जाता है, अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। लेकिन अरेबियन सी में पानी चला गया तो ये तो अच्छा पानी था, स्वीट वाटर था, फ्रेश वाटर था। नदियों में पानी फ्रेश होता है, और वो फ्रेश वाटर जाके जैसे अरेबियन सी में मिलेगा ब्रैकिश हो जाएगा,
यूजलेस हो जाएगा। जो वहां पे दहेज और भरूच की इंडस्ट्री है उस पानी को यूज नहीं कर पाएगी, न ड्रिंकिंग के लिए, न इंडस्ट्रियल, न रिक्रिएशन, किसी काम का नहीं है। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम और वहां पे एक नया प्रोजेक्ट दिया है, बड़भूत ब्रिज, जो डाउन स्ट्रीम ऑफ भरूच है। करीब करीब 12 किलोमीटर है, भरूच से थोड़ा नीचे जाएंगे समुद्र की तरफ, अरेबियन सी की तरफ जाएंगे तो एक बड़भूत एरिया आता है, वहां पे बैराज बन रहा है। वहां वियर नहीं बन रहा, बैराज इसलिए बन रहा है कि जब मानसून सीजन में नर्मदा से, सरदार सरोवर से पानी छोड़ा जाए तो उसको काफी मात्रा में उसको होल्ड किया जाए, पुल अप किया जाए और वही पानी सब जगह पे सप्लाई किया जाए। तो ओके, हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम आगे जा नहीं पाएंगे, तो 5 मिनट बोल रहा है ये टाइम। तो आप लोग रेडी रहिए। एक मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूं, इसको समझाने से पहले आपको और समझाऊंगा। आज का आपका जो असाइनमेंट है आप देख लीजिए। नर्मदा कैनाल का मैंने लेफ्ट साइड में रखा है, वासना बैराज एंड कैनाल का राइट साइड में रखा है। जो वासना बैराज एंड कैनाल का फतेहवाड़ी कैनाल है उसका असाइनमेंट आपको करना है। आपको डिस्चार्ज कि एट हेड पे कितना है वो आपको गूगल करना है। डिस्चार्ज इसके टेल एंड पे, जहां ये फतेहवाड़ी कैनाल खत्म होती है लगभग 2-3 किलोमीटर में, वहां डिस्चार्ज कितना रहता है लिख लीजिए आप पेंसिल से। और तो आप फिर क्या है कि ये जो डिस्चार्ज ये हो रहा है ना, फिर डिस्चार्ज क्यूमे के ट्रेल में। और लास्ट असाइनमेंट है, जो बड़ा असाइनमेंट है, मेन असाइनमेंट है, जो आपका फाइल का भी पार्ट बनने वाला है, ये लास्ट वाला लिख लीजिए कि ड्रॉ द स्कीमेटिक प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट डाइवर्जन हेडवर्क एंड कैनाल सिस्टम ऑफ दिस वासना बैराज एंड फतेहवाड़ी कैनाल। ये आप नेक्स्ट टाइम करके आइएगा तो मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम से आपका जो इसका अंडरस्टैंडिंग होगा वासना बैराज और कैनाल का, वो हम मैच करेंगे। आपका दिमाग और जो थियोरेटिकल एकेडमिक होता है उसके साथ मैच करेंगे। तो मैं आपको ये जो कैनाल डिस्चार्ज है, ये खत्म नहीं होती है मीटिंग तब तक, थोड़ा सा बता भी दूं कि डिस्चार्ज यहाँ पे 1100 क्यूमेक, क्यूसेक नहीं है, क्यूसेक आप ये गलत समझिएगा, क्यूमेक है ये, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूसेक इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड। डिस्चार्ज जो मेजर करते हैं वो नवागाम, जहां से ये कैनाल चालू होती है हमारी नर्मदा कैनाल सरदार सरोवर से, 1100 क्यूमेक्स है, जो सांचौर कहीं राजस्थान में ये पानी लास्ट में सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो वहां जाके केवल 75 क्यूमेक्स रह जाता है पानी, और वहां जाके ये फिर खत्म भी हो जाती है कैनाल। और इस वे में इसी फतेहवाड़ी कैनाल का डिस्चार्ज कितना है ये आप सोच सकते हो कि इसका डिस्चार्ज कितना है। इसके साथ कंपैरिजन की दोनों मैंने रखी है आपको कैनाल्स की, कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हमें नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ 1-to-1 होऊंगा इसमें लेबोरेटरी में एंड लेक्चर में, देन आई विल आस्क यू टू सबमिट, I'll give you details of how you should submit your presentation and report assignment onto this. Okay? Are you all comfortable? Okay, fine. Thank you very much for joining, and we'll meet next time. Bye bye.